Good morning, students. I hope you all are fine at your homes. Students, without wasting our time, I know you all are waiting that ma'am should explain us the next exercises of Unit 6 which are left. So, let's start with the video. So, today I'm going to explain you exercise 6T of Unit 6 subtraction with borrowing. So, let's start. Unit 6 may we have exercise 60. As you can see, there is something written on this board. Practice is equals to strong math. So the more you practice, the more strong your maths will be. So let's do question number 1, which is 91 minus 7. So ones place and tens place. Ones place se we have to start. 1 minus 7 you cannot subtract, so you will take 1 borrow from 8. From 9 it will become 8 and 1 will become 11. 11 minus 7 is 4 and 8 will be as it is. So this is your answer to the question. Let's do next question. Again let's subtract the numbers from one's end. 4 minus 6 you cannot subtract, so let's take 1 borrow from 8. 8 will become 7 and this will be 14. 14 minus 6 is 8 and 7 will be 7 as it is, and this is your answer. Now first question के rest of the parts you can do on your own. Let's do question number 2. Question number 2 में let me do question number 2 का B part. So 2 minus 6 not possible. Let's take 1 from 6. From 7 it will become 6. This will be 12 now. 12 minus 6 is 6 only. Now again 6 cannot subtract 8. Let's take 1 from 3. 3 will become 2 and it will become 16. 16 minus 8 is 8 and this will remain 2 as it is, and your answer is there. Now let's do D part. Because 2 zeros are there, so we will take 1 borrow from 6. 6 will become 5. This will now 10. Now you want 1 from this 10, so this will become 9 and it will be 10. 10 minus 8 is 2, 9 minus 3 is 6 and 5 minus 4 is 1. So this is your answer. Now rest of the questions are very similar. Question number 2 में जितने भी parts हैं they all are similar, so you all can do on your own, right? Any doubts, any queries you face, so you all can do. Now let's do question number 3. 3 का first part I am doing for you. 7 minus 8 is not possible. Let's take 1 from 6. 6 will become 5 and this will be 17. Now subtract 17 में से 8 को subtract करने की कोशिश करो. It will be 9. 5 minus 5 is 0, 5 minus 3 is 2 and 2 will remain as it is here. Okay, because उसके नीचे कुछ नहीं ना बच्चा, you can consider 1 0 here. So 2 minus 0 तो 2 ही होता है, as you all know already. Now let me do question number G for you. 0 minus 1 not possible. Let's take from 1. 1 will become 0 and this will be 10. 10 minus 1 is 9. Now you have to take one carry 1 borrow आपको करना पड़ेगा in order to subtract this number with 3. So let's take 1 borrow from 6. 6 will become 5. This will be 10 now. Now you have to take 1 from this 10. So this 10 will be 9 and this 0 will become 10. 10 minus 3 is 7. 9 minus 2 is again 7 and 5 minus 4 is 1. So this is your answer. Let's do H part also. You can see so many zeros here. बेटा always remember, जब भी इतने सारे zeros होते हैं ना, तो ज़ीरो से जो पहले नंबर होता है उसमें से आप borrow कर सकते हो. 8 बन जाएगा आपका 7. अब आप ये चीज़ बहुत टाइम से देखते आ रहे होगे कि अगर आपको लास्ट वाले ज़ीरो में से कुछ सब्ट्रैक्ट करना है तो बीच के जो ज़ीरोज़ हैं आप उनको 9 बना दो एंड दिस लास्ट विल बिकम 10, क्योंकि ऑटोमेटिकली आप जब borrow करते हो तो वो 9 ही हो जाते हैं. So 10 minus 1 is 9, 9 minus 1 is 8, 9 minus 5 is 4, 7 minus 4 is 3. So your answer to this question is 3489. Fine. Now these questions, do these sums in your notebook. These you have to do in your notebooks. So this register work will be given to you for sure. So try to do these questions in your rough notebook so that आप practice कर पाओ अच्छे से और ज़्यादा stronger maths के लिए. Otherwise जो भी register में work करना है that is given to you for sure. Okay. Next is our exercise 6E in which you have to add and subtract in steps. ठीक है. So what steps we have to follow I will tell you.
क्वेश्चन नंबर 1 का ए पार्ट. लेट मी डू इट इन माई पेज. ओके, सो क्वेश्चन नंबर 1 ए पार्ट इज 46 प्लस 32 माइनस 17. बेटा ऑलवेज रिमेंबर, एज यू ऑल नो कि हम हमेशा एडिशन करते हैं पहले, तो हम सबसे पहले 46 प्लस 36 करेंगे, 32 करेंगे. सो लेट्स ऐड द नंबर्स फर्स्ट. ऐड करो. 6 प्लस 2 8 होता है. 4 प्लस 3 इज़ 7. अब जो भी आपका रिजल्ट आएगा ना 78, उसमें से आप नेक्स्ट नंबर को सब्ट्रैक्ट करो. बहुत इजीली आप उसको सब्ट्रैक्ट कर पाओगे. 8 माइनस 7 इज़ 1, 7 माइनस 1 इज़ 6, and your answer to this will be 61. Is it clear? Always remember, add the numbers first and then whatever result you get while adding, subtract the other number with that result. I am doing one more question for you. Question number C part. So C part is our 53 minus 66 plus 48. ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है. अब मैंने आपको बताया कि पहले आपको ऐड करना है, तो यू कैन सी 53 क्या है, एडिशन का है, क्योंकि उसके सामने कोई भी साइन नहीं है. एंड 48 इज़ ऑल्सो ऑफ एडिशन. सो लेट्स ऐड द नंबर्स. 53 और 48 को पहले ऐड कर लेते हैं. ऐड करते हैं. 8 प्लस 3 इज़ 11 का 1, 1 किया कैरी. 1 प्लस 5 इज़ 6, 6 प्लस 4 इज़ 100. तो आंसर कितना आया, 101. अब जो भी आंसर आपका आया उसमें से आपको सब्ट्रैक्ट करना है टू द अदर डिजिट. लेट्स सब्ट्रैक्ट द नंबर. 1 में से 6 सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हो, 0 में से बोरो नहीं कर सकते हो. 1 से बोरो किया, 1 विल बिकम 0, दिस 0 विल बिकम 10. अब 10 में से फिर बोरो करोगे, 10 बन गया 9 एंड दिस 1 विल बिकम 11. 11 में से 6 माइनस किया, यू विल गेट 5. 9 माइनस 6 किया तो यू विल गेट 3. सो योर आंसर विल बी 35 इन दिस केस. इज़ इट क्लियर? इसी तरीके से जो बाकी क्वेश्चंस हैं इस चैप्टर के अंदर, मैं एक क्वेश्चन और कर देती हूँ आपको. देखो, प्लस पहले माइनस बाद में, ये क्वेश्चन हमने कर लिया. माइनस पहले प्लस बाद में, ये क्वेश्चन भी हमने कर लिया. नाउ लेट्स डू कि दोनों में अगर माइनस है तो व्हाट वी विल डू. ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन का ई पार्ट, लेट्स डू इट. फर्स्ट क्वेश्चन के ई पार्ट में इज़ गिवन 24 माइनस 12 माइनस 11. सो बेटा इस टाइप का क्वेश्चन जब आता है तो आप इसमें एडिशन कैसे करोगे, है ना. एडिशन का तो सामने नहीं है, तो आप क्या करोगे, 24 और 12 को पहले सब्ट्रैक्ट करोगे. सो लेट मी सब्ट्रैक्ट द नंबर्स. 24 को 12 से सब्ट्रैक्ट करो. 4 माइनस 2 इज़ 2, 2 माइनस 1 इज़ 1, राइट, 12. अब जो भी आपको रिजल्ट मिलता है, ये जो आंसर आया, उसमें से आपको नेक्स्ट नंबर को सब्ट्रैक्ट करना है. तो लेट्स सब्ट्रैक्ट द नंबर्स. 2 माइनस 1 इज़ 1, 1 माइनस 1 इज़ 0. So what will be your answer? Your answer will be 0, 1 in this case. एक और क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं. एच पार्ट. एच पार्ट क्या बोला है, 56 माइनस 28 माइनस 28. तो सबसे पहले फर्स्ट नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करते हैं. 56 में से 28 को सब्ट्रैक्ट करो. 6 में से 8 को सब्ट्रैक्ट नहीं किया जा सकता. लेट्स टेक 1 बोरो. 5 विल बिकम 4, 6 विल बिकम 16. 16 में से 8 को सब्ट्रैक्ट करोगे, आपको मिलेगा 8. 4 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करोगे, आपको मिलेगा 28. अब ये जो रिज़ल्ट आपको मिला, इसमें से आप 28 को सब्ट्रैक्ट करो, तो आपको क्या आंसर मिलेगा, 0. सो व्हाट विल बी योर आंसर इन दिस क्वेश्चन, 0. समझ में आया? इज़ इट क्लियर? नाउ लेट्स डू सेकेंड क्वेश्चन. सेकेंड क्वेश्चन भी ईजी है, बस नंबर ऑफ डिजिट्स उसके अंदर इंक्रीज़ कर दी गई है. सो लेट्स डू सेकेंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट. सेकेंड क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट में क्या दिखा है, देखो, 359 प्लस 83 माइनस 247. So let's do the number. 359 plus 83 minus 247. First of all we will add the numbers. Let's add them. 359 में 83 को प्लस करो, क्या आंसर मिलेगा, 9 प्लस 3 इज़ 12 का 2, 1 कैरी. 1 प्लस 5 इज़ 6, 6 और 8 कितना होता है, 14. 14 का 4, 1 कैरी. 1 प्लस 3 इज़ 4. अब जो भी आपका रिज़ल्ट मिला 442, उसमें से आप 247 को सब्ट्रैक्ट करो. लेट्स सब्ट्रैक्ट द नंबर्स. 2 से 7 सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकता, हमने बोरो किया 4 में से, 4 बन गया 3 एंड 2 विल बिकम 12. 12 में से 7 सब्ट्रैक्ट करोगे, आपको मिलेगा 5. 3 में से 4 सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकता, हम एक बोरो करते हैं, 4 बनेगा 3, 3 विल बिकम 13. 13 में से 4 जाएगा, यू विल गेट 9.
3 minus 2 will be 1. So answer to this question is 195. समझ में आया? Is it clear? Now you can see that प्लस है, माइनस कर सकते हो बहुत इजीली. माइनस और प्लस दिया है तो पहले फर्स्ट नंबर और थर्ड नंबर को प्लस करो, उसको माइनस करो फिर द सेकेंड डिजिट. ओके, ये बिल्कुल सेम इसी तरह से जैसे हमने इसका क्वेश्चन नंबर सी पार्ट किया था ना, हमने फर्स्ट का सी जिस तरह से किया था बिल्कुल सेम वैसे ही इसको करना है. ठीक है, अब मैं आपको डी पार्ट करके दिखाती हूँ. डी पार्ट है आपका 623 माइनस 215 माइनस 116. तो पहले सब्ट्रैक्ट करते हैं नंबर्स को. 623 में से 215 को सब्ट्रैक्ट करो. सो 3 में से 5 नहीं जाएगा तो आप यहाँ से 1 बोरो करोगे. 2 बन गया 1, 3 विल बिकम 13. 13 में से 5 सब्ट्रैक्ट किया, यू विल गेट 8. 1 माइनस 1 इज़ 0. 6 माइनस 2 इज़ 4. अब 408 में से जो बाकी बचा हुआ नंबर है उसको सब्ट्रैक्ट करते हैं. 8 माइनस 6 इज़ 2. 0 में से 1 सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते तो लेट्स टेक 1 बोरो फ्रॉम 4. 4 will become 3 and 0 will become 10. So 10 minus 1 is 9. 3 minus 1 is 2. So your answer will be 292. समझ में आया? नाउ अब हम क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं, बिकॉज बाकी क्वेश्चंस जो हैं वो बिल्कुल सिमिलर हैं. सिमिलर क्वेश्चंस है, आप जितना प्रैक्टिस करोगे आपको समझ आएगा. मैं थर्ड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट आपको समझाती हूँ. 324 माइनस 2846. 3124 में से माइनस करोगे 2846 प्लस 4649. अभी मैंने आपको समझाया कि बेटा जब भी पॉजिटिव साइंस हों, आपको बीच में अगर माइनस दिया है तो आप पहले फर्स्ट और थर्ड टर्म को प्लस करो. तो 3124 में 4649 को पहले ऐड कर लेते हैं. 9 प्लस 4 इज़ 13 का 3, 1 कैरी. 1 plus 2 is 3, 3 plus 4 is 7, 1 plus 6 is 7 and 3 plus 4 is again 7. Now 7773 में से 2846 को सब्ट्रैक्ट करते हैं. लेट अस सब्ट्रैक्ट द नंबर्स. कैसे सब्ट्रैक्ट करोगे? 3 में से 6 नहीं जाएगा तो हम एक बोरो लेंगे 7 से. 7 बन गया 6. 3 विल बी 13. 13 माइनस 6 इज़ 7. 6 माइनस 4 इज़ 2. 7 में से 8 नहीं जाएगा तो फिर से आप बोरो करोगे. 7 बन जाएगा 17. 17 में से 8 जाएगा 9. 6 माइनस 2 इज़ 4. सो योर आंसर इज़ 4927. समझ में आया? लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 3 का डी पार्ट. दोनों में जब माइनस होता है तो डी पार्ट आपको क्या मेंशन है? 6200 माइनस 1001 माइनस 2781. ठीक है, सो लेट्स सब्ट्रैक्ट द नंबर्स. सो सबसे पहले 6200 को सब्ट्रैक्ट करेंगे. किस चीज़ से सब्ट्रैक्ट करेंगे? 1001 से. लेट्स सब्ट्रैक्ट द नंबर्स. ठीक है, 0 0 है, दोनों नहीं जाएगा. यहाँ से हम बोरो करेंगे. ये 1 हो गया. दिस विल बी 9. दिस विल बी 10. 10 माइनस 1 इज़ 9. 9 माइनस 0 इज़ 9. 1 माइनस 0 इज़ 1. 6 माइनस 1 इज़ 5. तो ये आया 5199. अब इसमें से रेस्ट ऑफ द नंबर यानी 2781 को सब्ट्रैक्ट करेंगे. 9 माइनस 1 इज़ 8. 9 माइनस 8 इज़ 1. 1 में से 7 सब्ट्रैक्ट नहीं हो पाएगा तो लेट्स टेक 1 बोरो फ्रॉम 5. 5 विल बिकम 4. 1 विल बिकम 11. 11 माइनस 7 इज़ 4 and 4 minus 2 is 2. So your answer to this question will be 2418. बिल्कुल सेम तरीके से जो रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस हैं आपको प्रैक्टिस करने हैं. किसी भी क्वेश्चन में डाउट आता है तो मैम को जूम मीटिंग में पूछेगा. बट मोर यू प्रैक्टिस मोर स्ट्रॉन्ग योर मैथ्स विल बी. ठीक है, सो एवरीबडी जस्ट टेक केयर. गुड लक, गुड बाय, एंड इन द नेक्स्ट क्लास आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू द नेक्स्ट exercise. Okay, so stay safe, enjoy.